الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول کریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الکلام القدیم الفرقان العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور حاضرین اکرام اور میرے ماں بہنوں اور نوجوان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں عقائد اور ایک بندہ جس طرح زندگی نبھانا ہے اس کے بارے میں، اس کے تعلقات سے، اور جو حرام حلال ان پورے جو چیزاں کلام میں اللہ تعالیٰ فرمائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا اور جو ہے قرآن کا بیان بھی سکھایا. بہرحال آج بھی جو ہے اتنے صدیاں ہو چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو پردہ فرما کے ہزار سالوں سے بڑھ کے جو ہو چکا، لیکن جو ہے ابھی بھی لوگوں کے اندر شک ہے، اور لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور مستحبات چیزوں اور سنت کے چیزاں اور جو ہے واجبات اور فرض کیا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں آج بھی ہم دیکھے جاتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، یا نظر کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کے اندر جو ہے اتنا جو ہے، اور میڈیا خاص کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوا ہے، نیٹ کے ذریعے ایک بٹن دبانے کا جو ہے، یعنی کہ خالی وقت ایک سیکنڈ میں کتنے کی جو ہے ہمارے کو باتیں معلوم ہو جاتے ہیں. پھر بھی لوگان جو ہے اس طرف نہیں جاتے، غور نہیں کرتے کہ جو ہے کیا معلوم ہونا چاہیے. آئیے کہ بندہ جو ہے تم لوگوں کے سامنے چند لوگوں کے ویورز ہمارے ہیں کہ چینل دیکھنے والے، ان لوگوں کے کئی سوالات ہیں. آج خالی میں ایک 5 سوال خالی جس کا جو سوال کا جواب میں رکھتا ہوں. پہلا کہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی کہ یہ جو دعوت نامہ، نکاح نامہ یا چہلم کا خط وغیرہ، اور دوسرے جو ہے تسمیہ خوانی، اس میں سب کلام کی آیتاں لکھ سکتی ہیں کیا، اور جو ہے نقشے مکہ مدینہ وغیرہ یہ سب بھی کر سکتی ہیں، جائز ہے کیا. تو خصوصاً طور سے اگر کہا جائے یہ گریٹنگ کارڈز اور جو ہے جو میرج کا ہو، جو تسمیہ خوانی کا ہو، یا چہلم کا ہو، یا جو ہے منی کا دوستی کا ہو، یہ سب میں جو ہے تم جو کچھ نامہ وغیرہ لکھو، لیکن قرآن کا نام یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تک نہیں لکھنا. کیونکہ وہ شادی ہو یا نہ ہو، چہلم ہو یا نہ ہو، کیا کرتے ہیں تو جو ہے اسے پھاڑ دیتے ہیں اور ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا خادمہ پڑھتے ہیں. اس لیے وہ بیت ہوتی ہے وہ آیت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت بھی ہو. اور چند لوگان جو موتا ہے کہ ایک دفعہ تو چہلم ہوتی ہے کل من علیہ فان کل نفس ذائقۃ الموت. ایسی قرآن کی آیت ہیں بھائی. یہ آیت لکھنے سے کیا جو ہے اس میں جو تمہیں ملتا نہیں. میں بھی دیکھا نہیں سوچا، اور میں بھی جو ہے یعنی کہ ان چیزوں کو پہلے جو ہے پہلے شروعات تو بہت سالوں کے پہلے دیتے تھے، لوگ دیتے ہیں جو ہے خاموش ہو جاتا. اور جو اب بندے کے دماغ میں جو آتا ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں،
कुरान की आयत लिखने की वजह क्या, दावत को बुलाना है बस उतना खाली, फलान तारीख दावत है, फलान तारीख निकाह है, फलान तारीख जो वलीमा है वगैरह, बस इतना शॉर्ट मैट लिखे, वो जो है हमें उसके लिए आयतां लिखे, वो दुआयां लिखे, अरबी में लफ्ज के दुआयां अहदीसा लिखे जो है हमें जो करते हैं वो जायज नहीं। इसी तरह जो है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा ये मोहतरम और जो है बहुत पाकीज़ा और जो बहुत तरह के पाकीज़ा जो मकामात हैं इसके शक्ल में नहीं रखना चाहिए। देखो तुम्हें हर रुखे में हैगा मक्का मदीना, इस भी क्या करते हैं लोग सब फेंक देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमें उसे जो है निके तौहीन करने के बराबर है। और जरा घरा में क्या करती है, पर्दा है ना, ये जो है पर्दा चौखट का पर्दा है ना, स्क्रीन में भी मक्का मदीना और सामने एक अरबी का लफ्ज बड़ा लफ्ज लिखे जो है ऐसा पर्दा, वो पर्दे को जो है पर्दे से जो छोटे बच्चा के नाक भी पोंछ लेते हैं, और पर्दे को जो गैर कौम वाला कौन भी आए तो ची लेता भी है, हट लेता भी, हटा देता भी है, और उसे जो है घाटी भी भा देते हैं कभी कभी पर्दे को, मक्का मदीने को घाटी भर सका। कहीं को भाई है अलग सीनरी रखो तुम्हें फूलों की झाड़ों की वगैरह, तो ये मेरा कहना है कि ये जायज नहीं है। खतूत में वगैरह कौन सी आयत लिखना भी ममनू है, वो जायज नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, फर्ज नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते थे। अब जो दुआयां आमतौर से जो गैर महदीबियां वगैरह करते हैं, फर्ज होते ही फौरन, मैं फर्ज नमाज के फौरन बाद की बात कहता हूँ, फर्ज नमाज होते ही जो है हाथ उठा के दुआ मांगते ही, क्या ये जायज है क्या करके पूछे ही। और रसूलुल्लाह का अमल क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इतना था, खाली जो बैठते थोड़ी देर के उठ जाते, तो ये उठने के बाद बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे पूछी, आका आप जो फर्ज नमाज होते ही थोड़ी देर के लिए तौफीक फरमाते तो आप क्या पढ़ते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हर फर्ज नमाज होते ही ये जो अल्लाह ताला का जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम तबारकल्लज़ी ज़ुल जलाली वल इकराम, इतना खाली बोलते हैं। हमें क्या करते हैं, लंबी चौड़ी दुआ, फर्ज नमाज होती ही दुआ। ये जो है यानी कि रसूलुल्लाह की सुन्नत से नहीं है, सहाबा की सुन्नत भी नहीं है, मेहदी मऊद के अमल में भी नहीं है, और मेहदी के जो है खुलफा में भी नहीं है, ताबईन में भी नहीं है। फर्ज नमाज होते ही दुआ। तो लोग क्या करते हैं मालूम, फर्ज नमाज के बाद दुआ होंगी और उनका इंटेंशन पर किसमें आता, इबादत नमाज फर्ज में नहीं आता, वो मुस्तहब चीज है, और सुन्नत भी दुआ सुन्नत है, सुन्नत की चीज में हो जाता है, तो उसे अहमियत किसकी, सुन्नत की बढ़ जाती है, फर्ज की कम हो जाती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ इतना खाली बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम तबारकल्लज़ी ज़ुल जलाली वल इकराम, इतना खाली बोलते हैं। उसके बाद तुम्हें सुन्नत नमाज़ पूरा होने के बाद कोने में बैठ के सजदे में जाके दुआ करो। दुआ करने का तरीका भी है, दुआ मख्फी में करना, तुम्हें अल्लाह का करती सो लोगों को दिखाने के लिए, इसके लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। वो गाने में आता सो हाथ उठा के दुआ मांगो, बल्कि ये मोहम्मद रफी गाने में भी और नागुर हनीफे गाने में आता सो क्या हाथ उठा के दुआ मांगे बोल को, वो गाने में है सो, यानी कि सुन्नत में नहीं है वो, समझे। तो इसलिए जो है फर्ज नमाज के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा दुआ नहीं मांगते थे। अब लोग क्या करेंगे, तो फर्ज नमाज होते ही चंद लोग चंद मस्जिदा में फर्ज होते ही सजदे मिल जाती, सजदे में जारी क्या कहते हैं, सजदे में जाकर दुआ करके बताए, ये रसूलुल्लाह के अमल से भी साबित नहीं है। दुआ करती तुम्हें सजदे में कैसे करती हूँ भाई, सजदे में करना अफजल बोलती हूँ तुम्हें। अरे भाई हमें कहते हैं कि फर्ज नमाज के बाद तुम्हें जो है नको करो, सुन्नता पढ़ लेके तुम्हें अरे कोने में जाके बैठ के जो है आधा घंटा के 1 घंटा सजदे में बैठ दुआ करो, इतनी बात है। तो फर्ज नमाज के फौरन बाद हाथ उठा के लंबी चौड़ी दुआ करना रसूलुल्लाह के सुन्नत से साबित नहीं है, इसके ऊपर फतवा भी है। आइए तीसरा सवाल
ایک نمازی کے سامنے سے گزر سکتی ہیں کیا؟ گزرنا ہے تو کہاں سے؟ اب فرض کرو کہ نمازی کھڑا ہے، نمازی کا جو ہے حد، اس کا جو ہے یعنی کہ اس کا جو مقام کہاں تک قلم سجدے کی جگہ تک کی ایک نمازی کا پورا یعنی کہ جو ہے یعنی کہ مسجد کو کیپچر نہیں کر سکتا. ہاں مسجد میں وضو کر لے کے بیچا کھڑیا تھا، یہاں سے جانا نہیں آدمی، وہاں سے جانا نہیں، ایسا نہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں، انہوں کہاں نماز پڑھتا ہے، 3-4 صف ہٹ کے اکیلا کر کے نماز پڑھتا ہے. ایک دوسرا آدمی آتا ہے، انہیں سامنے کرنے سے کیا ہے، کچھ نہیں. ایک آدمی، ایک بندہ، اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہے، اس کا نماز کا حد سجدے کے مقام تک ہے. سجدہ کے مقام کو تھوڑا ہٹ کے بھی ہمیں گزرنے سے گناہ نہیں. اس کے سجدے کے مقام کے اندر بندہ جو نمازی کے بھی یعنی کہ نمازی اور سجدہ کا مقام، اس کا سجدے کا مقام اس کے بیچ میں ہمیں جانا گناہ، وہ گناہ ہے وہ، کیونکہ بندہ اللہ سے وابستہ رہتا ہے. اس وقت خدا اور بندے کے درمیان کی گفتگو چلتی ہے، اس وقت جو میں گزرنا اللہ پسند نہیں کرتا، فرشتے پسند نہیں کرتے، رسول اللہ کے خلاف. اس لیے تم گزرو کہ جو ہے وہاں سے جو ہے کراس ہو سکتے ہیں، کہاں تو سجدے کے مقام کو ہٹ کے کراس ہو سکتے ہیں. اب عرب میں جا کے دیکھے تو مکے میں ابھی بھی آج آپ کے دور میں بھیڑ نہیں ہے، لکھوں کے لوگ نماز پڑھتے تھے تو ایک کے اوپر ایک کود کے نماز پڑھتا، کھندل کے جا کے نماز پڑھتا. سمجھے؟ جہاں شریعت شروع ہوئی ہے، جہاں پابندی شروع ہوئی ہے، جہاں پر طریقہ خان شروع ہوا ہے، وہ مقام میں نماز کیسا پڑھتے معلوم، یعنی کہ ایسا پڑھتے ہیں استقلا مکڑی کھڑ کے جو ہے پڑھتے، تاکہ جو ہے انہوں پہلے کھڑ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کا حج عمرہ قبول کر دیں گا بول کے. نہیں، اکیلے جا کے تنہا یا کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. کتنی کی وسیع پڑی جگہ، کھڑو نماز پڑھ نہیں، یہ دوسرے کندل کے جا کے انہیں سجدے میں جاتا ہے گا، اس کے گردن میں پاؤں رکھے، دوسرے گردن میں پاؤں رکھے، انہیں اٹھا کی نہیں کہ اللہ کو معلوم. 90 سال کا بڈھا ہے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ضروری کیا بھائی؟ دیکھو عرب میں ہمیں کوئی بندہ خود دیکھا، یہ بندہ خود دیکھا چپلوں کے اوپر سجدہ، چپلوں کے اوپر سجدہ، اور وہ کراس کرنے جگہ جاتے ایسے جاتے ہیں کہ بیچ میں، تو یہ کراس کرنا گناہ ہے. تو ہماری مسجد میں بھی، کون سی مسجد میں بھی ہو، کہ نمازی کے سجدے کے بیچ کے جو وہ گیپ میں نہیں جانا، اس سے ہٹ کے سجدے کے ہٹ کے جو مقامت ہے 5 تو میں کراس کر سکتے ہی. آئے دیکھتے ہیں کہ زیارت قبور عورتوں کے لیے اور زیارت قبور جائز کیا؟ ہاں جائز ہم کہتی ہیں. دلیل ہے کیا؟ ہاں دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کے لیے دعا کرے تھے، اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے بارگاہ دعا کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی بھی حرکت رسول اللہ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، خدا و تعالیٰ کو جو راضی ہے وہی کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ دعا کرے تھے. ایسا بھی ایک موقع تھا کہ جب آپ خبر سے گزر رہے تھے، گزرتے خود جو ہے خبر کھڑ گئے اور وہاں سے کھجور کی کچی ڈھالی توڑ کے خبر کے اوپر ٹوپے ہی، اور صحابہ پوچھنے سے بولے یہ کچی ڈھالی کے پتے اور کچی ڈھالی سوکھی تک جو ہے یہ اللہ کے ذکر میں رہے گی، اور ذکر میں جب تک رہے گی تب تک کے لیے اہل خبر کے لیے جو ہے اللہ سکون تسکین عطا فرماتا ہے. اس سے زیارت ہے کہ معلوم ہو گیا ہمارے کو. اور جو ہے 15ویں شعبان کی رات، شب برات کے دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کو جا کے زیارت کر کے آئے ہیں. وہ بھی ہمارا حدیث میں ملتا ہے، مشکات میں ملتا ہے ہمارے کو جو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ جو ہے کہ زیارت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اسے انکار کرنا رسول اللہ کے سنت انکار کرنے کے برابر اور منکر ہے. انہیں منکر ہے، زیارت انکار کرنے والا. گیا خبر میں ڈالا، آیا اس کے بعد کون سا بھی چوتھا نہیں، 10واں نہیں، 20واں نہیں، چلو نہیں، وہ جو چھوڑو اور زیارت نہیں کرتا انہیں، ایسے لوگ بھی ہی. تو زیارت نہیں کرنا وہ جائز نہیں، وہ بدعت ہے. تو رسول اللہ کہہ رہے نعوذ باللہ. تو آئے دیکھیے زیارت عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے.
पहले जायज किया था अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे कि जो है औरतें ज़ियारत कर सकते ही। जब औरतों का जो है वो जज्बा और जो उनके जो अहल खबर के पास जाके उनके दादा होंगे, बाप होंगे, यानी अकारीब भाई कौन भी होंगे, वहां जाए तो जो है उनको जो वो जज्बे को रोकना नहीं होता, वो जो प्यार मोहब्बत को, बाप की प्यार मोहब्बत को, दादा की प्यार मोहब्बत को, तो औरतें सर पटक पटक के अपने जुल्फें डाल के जो है बेअदबी पेश करना करते ही ये देख के रसूलुल्लाह बोले कि औरतें जो है जियारत को मत जाओ, जियारत की नीयत से खबर के करीब भी जाना। इसलिए आजकल जियारतों को ज्यादा लोग जो औरतें निकलते ही कि जो है एहतियात करो उस चीज में। अगर हमारे रोजे हमारे बुजुर्गों के जो है मुकाम पर जाते हैं तो भी अब जो अलग करके रखे ही औरतें खबर के करीब आगे जियारत नहीं करते, अलग देख करते। मर्दों को वहां जाके जाते और जो खदम के खदम है, खदम जो बुजुर्गों के खदम में जब बैठ के थोड़ी देर जिक्र में बैठे ताकि वो बुजुर्ग जो है अल्लाह का जो है इनाम पाने वाला होगा, तो इसलिए बुजुर्गों के खबर में जाके बैठना, थोड़ी देर जो है दिल को तस्कीन मिलने के बाद उठ के उनकी जियारत वगैरह करके फूल वगैरह डाल के आना। तो ये फूल की गोबे डालती रसूल डाले क्या, रसूल डाले क्या का तो क्या मुल्क अरब में फूल था क्या, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की डाली फेरे थे और फूल होता तो सहाबा का जाके फूल लेके डालते, लेकिन फूल नहीं था। हमें फूल डालते ही तो कुछ बुरी बात नहीं, हमें सूखे फूल डालते नहीं, कच्चे फूल डालते ही। इसीलिए वो कलियां कच्चे फूल डालते वक्त जो है यानी कि वो जो मुरझाने के पहले तक जिक्र करती है तो अहले खबर को तस्कीन मिलता है। और दूसरी बात है, औरतें कौन सी हाल भी ज़ियारत की नीयत से कौन से बुजुर्ग की भी खबर के पास मत जाओ। अगर जाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बोले तो याद आता है आपको, जन्नतुल बकी से जियारत करके आते वक्त जो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बाहर चल देखती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही, कहाँ से आते ही आप पूछते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ही कि मैं जन्नतुल बकी को गया था, वहां जाके जो है उहद के शोहदाओं के लिए दुआ किया था अल्लाह की बारगाह में, तो मैं भी जियारत करती हूँ। रसूलुल्लाह रोके नहीं, आयशा तुम मत जाओ, अगर तुम्हें जियारत की नीयत से एक कदम भी तुम आगे बढ़ाओगी लानत के फरिश्ते तुम्हारे पीछे होंगे। ये चीज को नजर रखो। तो औरतों को चीजें हैं उसे जो है फॉलो करना इस्लाम कहता है तो फॉलो करो, एकदम इंडिपेंडेंट होकर आजाद मत हो जाओ। घर में बैठ के तुम्हें जियारत करो, नमाज 5 वक्त की फर्ज की नमाज घर में बैठ के पढ़ते ही ये जो है जियारत सुन्नत है, तो वो सुन्नत की चीज को तुम्हें हजारों के रुपए खर्च करके कहते हैं यहाँ नियत करते ही जाने की मदीना मुनव्वरा की। मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहां के लोगों की जो है सरदार है, हमारे उम्मत के सरदार है, हमें उनकी उम्मत है, मर्द और औरतें मुस्लिम मुस्लिमात है, इसलिए वहां जाने की नियत तुम्हें करना जायज है। उसके बजाय दूसरे खबरों में जाने की नियत करना, सुखना और जो मुराद है मांगना ये गलत है। और जियारत करके आना और बुजुर्ग है तो उनका तुफैल से अल्लाह के पास दुआ करना, या अल्लाह हमको ये बंदे के तुफैल से हमारा ये मुराद पूरी कर दे, दुआ कर सकते हैं जियारत में जाके, उसमें क्या भी नहीं। सूरह फातिहा पढ़ो, इखलास पढ़ो, फलक पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, यासीन पढ़ो, अकेला खड़े तो ये पूरा पढ़ लेके जो है उनके लिए दुआ करके, और जो बुजुर्ग का वो बुजुर्ग है तो बुजुर्ग का तुफे ले लेके आना, नहीं वो जो मामूली बंदा है तो उसके लिए पूरा पढ़िए अल्लाह उसे मग़फ़िरत अता फरमा। इन जो चीजें जो पढ़ा हूँ तेरे कलाम के ये आयतों का तुफैल है, वो जो है यानी कि बुजुर्ग को, यानी कि वो जो मेरे जो अकारीब मेरे भाई यानी तो जो ब्रदर तो मेरा अकारीब है, मेरे दादा, मेरे तो जो मेरे बाप वगैरह माँ वगैरह उनको अल्लाह अता फरमा बोल के वो दुआ करके मग़फ़िरत के लिए दुआ करके दीदार से जो है मुशर्रफ होने की दुआ करके जो है वहां से निकलना। ये है तरीका ज़ियारत का, कितना ही खाली है। और ये नहीं करना बड़े बड़े बुजुर्गों के यानी कि जो है खबर में झंडा चढ़ाना और जो है बड़े बड़े चादरा उड़ाना और जो चिराग लगाना, क्यों भाई खबर में चिराग क्यों, अंधेरे में क्या खबर के अंदर पड़ी उन्होंने खबर के अंदर रोशनी में ही बुजुर्ग हो नूरानियत में ही, तो थोड़ा चिराग जाके लगाना
दूसरा आदमी लगाना, वो ये देख के मुशरिक आके लगाना, ये देख के दूसरा लगाना, आखिर बुत परस्ती हो जाता वो। इसलिए चिराग नहीं लगाना, झंडा नहीं चढ़ाना और चादरें उड़ाना नहीं, ये सभी करे तो बिद्दत है, ये करना बिद्दत है। बाजे क्या करते हैं मालूम, मैं खबर से देखा हूँ, ये बुजुर्ग खबर में अंडा रखता है जगह, अंडा भी तेल चला के छोटे जो कटोरी में तेल की बत्ती रख के सर के आता है। एक को तो नहीं, मेरी घर की मुर्गी अंडा डालती नहीं, ये अंडा रखने से भी दारिंदे को कहाँ दिखे इनका इसका ईमान। अरे भाई यार अगर उन्होंने दुनिया में रखे पाप पा गए ही, उन्होंने पाक के पार जो ही, फिर भी छोड़ दें तुम्हें मुर्गियां को, जानवरों को, तुम्हारा पूरा लोगों को लगाई तुम्हें लंबी लकीर है, ये जायज है, बिद्दत है। उनसे डायरेक्ट मांगना भी नहीं, वहां जाके उनका वसीला लेके अल्लाह से मांगना चाहिए। तो जियारत करो, तरीका है उसका, ये इतना खाली करके आना, फूल डालना और जो सूर्य पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, आते रहना, तो अल्लाह जो है उनको तो फिर अता फरमाता, हमारे को भी नेक है। तो इतने चीजें खाली आज के ये जो बयान में कहना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हकीका का गोश्त के बारे में भी एक क्वेश्चन आया है, वो बोल के मैं खत्म करता हूँ। हकीका असल में कब देना और हकीका का गोश्त कौन कौन खा सकती। हकीका जो असल में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी दिए थे। लड़का है तो 2 बकरे और लड़की है तो 1 बकरा, पैदा होके 7 दिन के अंदर देना है, तो उसके बाद देना, नहीं तो मौका मिले तो 1 महीने के बाद 2 महीने में। जने क्या करते मालूम, 40 साल तरह देते इतनी, 40 साल देते नहीं, आगे बोलते मुर्शिद आज कुर्बानी देता हूँ, दीना क्या नहीं क्या दियो भाई, कुर्बानी का महीना है ये, आज का महीना नहीं, हकीका नहीं दिया, हकीका नहीं दिया, वो तो गुजर चुका, वो तो गुजर चुका, 7 दिन भी गुजर चुके हैं, 7 महीने भी हो गए, 7 साल भी हो गए, 17 साल भी हो गए, अभी क्या हकीका पड़े तुम्हारे लिए। 40 साल लगा कुर्बान दियो भाई, जाओ भाई को बोलकर भेजा था लोगों को। ऐसे लोग हम भी 40 साल के बाद इनको जो है नया जो है कि जो है सेंस में आता सब हकीका दे नहीं दे क्या नहीं क्या बोल के कैसा देंगे, वो गरीबी हालत में वो लोग माँ बाप। तो हकीका जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए थे। एक मर्तबा का शुरू कब्बल, एक मर्तबा जो आप जो है मक्के से जो है हिजरत करके निकले थे, जो खुबा का मुकाम आया, खुबा का एक मुकाम है, वो मुकाम ये गाँव था, वो आते ही जुबैर हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। पैदा होते ही जो है मुकाम पर जो अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनकी वालिदा, जुबैर की वालिदा क्या करी, बच्चे को उठा के रसूलुल्लाह गोद में डाल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने जो है खजूर उठा के जो है खजूर से थोड़ा मुंह में चूसे और चूस के तो कतरे के उसका जो लुआब है ना वो निकाल के बच्चे को जो है जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, सुभान अल्लाह, तत्फे जाए आये को फैज मिला जुबैर रज़ी अल्लाह को, यानी कि वो खजूर चूस के जो है यानी कि बच्चे के फोटो में लगाए और लगाने के बाद दुआ करे, खैर की दुआ करे, आफियत के लिए खैर की दुआ करे और बोले कि जो है बच्चा लड़का है, 2 बकरे तुम्हें जो है दुआ करना लगना में, और ये गोश्त सब खा सकते हैं। और उसकी नीयत उर्दू में ये है, इतना ही नीयत, या अल्लाह में फल मेरे बच्चे का या बच्ची के तरफ का जो है हकीका करता हूँ, और जो है यहाँ पर ये जानवर का, ये जानवर ये बकरा जो है ना, ये बकरे का जो है खून मेरे बच्चे खून के बराबर, ये बकरे का जो है चमड़ा और जानवर चमड़े के बराबर, और ये बच्चे का जो है कि हड्डी और जो है ये जानवर की हड्डी के बराबर, और जो है ये बच्चे का गोश्त जो है वो जानवर के गोश्त के बराबर, और ये बच्चे के बाल जो है, बच्चा या बच्ची हो उसके बाल जो है यानी कि जानवर के बाल के बराबर बोल के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के दुआ करते हैं। ये आगे की नियत है। अरबी का लफ्ज आता, जुमला आता, उसका पूरा ट्रांसलेशन उर्दू में रखे मैं बोला हूँ। ये बोल के काटते हैं, काटने के बाद जो है वो जो है वो जो काटने वाले खजाई को काटते ही फौरन लोग क्या करते मालूम, ये बाल मुंडाते, बाल मुंडवाना, और थोड़ा बाल है तो बाल तब मुंडा, तो बाल ही बिल्कुल नहीं है तो बाल पहले जो बाल सर के बाल आते ही वो बाल को मुंडा के उसके मुकदार पर जो है यानी के तोल के उसके बराबर का चांदी खैरात करते, गरीबों को देते, नहीं तो उनके रिश्तेदारों में कौन है कि उनको देते, फुफू का हक बोलते हैं जने, क्योंकि इसका हक है कि लेकिन देते हो, समझे। तो ये तरीका हकीके का तरीका।
आखिर गोश्त खा सकते हैं, ये तो बच्चा तो खा नहीं सकता, 7 दिन में काम बच्चा खाएगा, 7 सालों का खाएगा। हाँ, हलवा दिएगा तो जो है खा सकता, पूरे बकरे खा लेंगे उन्हें, वो बात अलग है। 25 साल 40 साल में हक्का दिए तो पूरा बकरा भी निगल देंगे उन्हें, बात अलग वो, और छोटा बच्चा नहीं खाता, इसलिए सब लोग हम भी खा सकते हैं। ऐसा कुर्बानी का खाना इस तरह, जैसे लोग कहते नानी नाना नहीं खाना, दादा दादी नहीं खाना, खाला खाली नहीं खाना, फूफू फूफी नहीं खाना, ऐसा रिश्ते जोड़ा जोड़ा जमा 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 के कौन से लोगों में नहीं खाना। मोहल्ले के अंदर अगर गए तो रिश्ते में मैं उसकी रिश्ते की फूफूना उन्हें कंप्लेन करेंगी, अभी बोलेंगे नहीं ना मैं रिश्ते की खाला ना होना, मंदिर की गोश्त नहीं दिया है। अरे अज़ान मोहतरम, ऐसे भी नहीं है, ऐसे नहीं है। हमारे मशाइखीन हमारे आलिम फतवा दिए ही इसके ऊपर, सब लोग खा सकते हैं। पड़ोसियों को जो अपने जो लोग गरीब है उनको पहले जो रुपए पहले बात है। तो हकीकत का गोश्त सुन्नत है, ऐसा कुर्बानी का सुन्नत इस तरह एक हिस्सा अपने लिए रखो, एक हिस्सा जो है रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा गरीब मिस्किन के लिए। सही तरीका ये है। तो कराहत के साथ माँ बाप खाते नहीं, हमें बच्चे के अम्मा बाबा हैं कैसा खाएंगे, अब खाना भाई कोई बात नहीं, उठा के तुम्हें तकसीम कर दियो, लेकिन नहीं खाना करके शरीयत में है मत बोलो, शरीयत की बात मत करो। तुम्हारी बात करते हैं, तुम्हारी मनपसंद की बात करो, अल्लाह पसंद की बात मैं करता हूँ। अल्लाह पसंद बात क्या है? सबको बांटो, सब भी खा सकते हैं। तो ये हकीकत का तरीका, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को भी इन चीजों की तौफीक अता फरमा। और 5 जो है सवाल पूछे गए, वो 5 का जो है जो जवाब मिल गया इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं हुआ तो मेरे फोन नंबर में जो कॉल करोगे जवाब दूंगा इंशाअल्लाह आइंदा, और जो है सवाल के जवाब भी आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।